Good morning, student. This is the second and final part of the chapter Magnetic Effect of Electric Current. In this chapter, we are going to discuss the Fleming's left hand rule, electric motor, and electromagnetic induction. Okay, so first of all, we are going to discuss about the Fleming left hand rule. Okay. देखो, force on current carrying conductor in a magnetic field. What happen when a current carrying conductor kept inside a magnetic field, yeah, external magnetic field? When a current carrying conductor placed inside a magnetic field mutually perpendicular to the magnetic field line, it experiences a force. Current carrying conductor experience a force. The force experienced by current carrying conductor inside an external magnetic field is decided, yeah, direction of that force on on current carrying conductor will be decided by the Fleming's left hand rule. So Fleming left hand rule states that the stretch the thumb, forefinger, या first finger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. Thumb, forefinger and middle finger, okay, of left hand. So if the first finger points in the direction of magnetic field and the second finger is in the direction of current, then thumb will point in the direction of force experienced by conductor. Okay, so by an experiment we can study it. Activity showing the force on current carrying conductor. Suppose a current carrying aluminum rod AB, जिसका लेंथ AB है, placed between the two poles of U-shaped magnet. North pole of magnet is vertically below and south pole of its vertically above the rod AB. Okay, and magnetic field directed upward from north to south pole, as we have already know. Okay, and the direction of current is from B to A, like this. This is the whole apparatus. Okay, this is the rod AB. Okay, and this is the U-shaped external magnet, U-shaped है ये. This is the north pole and this is the south pole. As we already know that magnetic field line arise from north pole and end at south pole. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंड होता है. When this rod AB connected with a battery and key, so current flow through this rod, aluminum rod AB, in direction B to A. ये B to A डायरेक्शन में करंट I फ्लो कर रहा है. ओके, then what will happen here? The direction of current as well as the direction of rod, yeah, you can say direction of current is mutually perpendicular to the direction of magnetic field lines. Okay, so this rod experience a force. This rod experience a force inward. ये रॉड एक जैसे ही करंट इसमें फ्लो करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जाएगा, वैसे ही दिस रॉड ए बी ऑफ एल्युमिनियम एक्सपीरियंस इनवर्ड फोर्स. ये एक अंदर फोर्स महसूस करेगा. ओके, इनवर्ड फोर्स एंड मूव इनवर्डली. ओके, नाउ if we reverse the direction of current in this aluminum rod, अगर हम इस करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम A to B कर दें, तो what will happen? The force experienced by the rod will be
आउटवर्ड, रॉड पर जो फोर्स लगेगा वो जो लेफ्ट में लग रहा था अब वो राइट साइड में लगेगा. ओके, आउटवर्ड फ्रॉम द यू शेप्ड मैग्नेट. ओके, दूसरा एक और कंडीशन है, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ पोल ऑफ मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट का पोल डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें, यहाँ नॉर्थ पोल कर दें और यहाँ पर साउथ पोल कर दें, तो व्हाट विल हैपन, द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी रिवर्स, टॉप टू बॉटम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड. सो फोर्स एक्सपीरियंस बाई रॉड ए बी विल बी इन जस्ट रिवर्स टू द फर्स्ट केस. ओके, तब ये आउटवर्ड फोर्स कर एक्सपीरियंस करेगा रॉड. ओके, और अगर फिर इसमें डायरेक्शन करंट का चेंज कर दें तो ये इनवर्ड में होगा. ठीक है, तो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई करंट कैरिंग रॉड इन अ permanent magnet. Okay, this activity show that the direction of force on conductor depend upon the direction of current in conductor and direction of magnetic field of external magnet. So direction of force on conductor is totally depend on the direction of current as well as direction of magnetic field. Okay, so displacement of current rod is largest when the current, direction of current and direction of magnetic field will be perpendicular. मतलब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, 90 पर होंगे, तभी सबसे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सो फोर्स एफ एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर या रॉड ए बी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मान लीजिए फोर्स एफ है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग रॉड विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू दैट रॉड. तो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय rod will be directly proportional to the current flowing through it. If the amount of current will increase, the force experienced by rod will also be increased. It is force also directly proportional to the length of rod. If length of rod will increase, then force experienced by rod will also be increased. अगर लंबा रॉड ले लेते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर छोटा रॉड लेंगे तो उसमें फोर्स कम लगेगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी तरह force experience on rod will be directly proportional to the magnitude of magnetic field. Okay, magnitude of magnetic field. If magnetic field will be stronger, the force experienced by rod will also be stronger. If magnetic field of magnet, external magnet will be smaller, then force experienced by rod will be smaller. Okay, next अब देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर is based on the Fleming left hand rule. Okay, an electric motor is a rotatory device that convert electrical energy into mechanical energy. This is the basic things, conversion of energy. Okay, it is used in fan, जैसे हम देखते हैं फैन में, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन. ओके, इन सब में होता है इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड की में भी पूछता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. तो प्रिंसिपल इज दैट व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज. टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज इज नोन एज टॉर्क. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टॉर्क द कॉइल बिगिन टू रोटेट, या आप कह सकते हो व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is placed inside a magnet, it experience a force. Okay, that is why they move inside the external magnetic field. Okay, so this is the simple principle of electric motor. So electric motor का आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं. It consists of a rectangular coil ABCD. Okay, here this is the outline of electric motor. So this is the two external magnetic field. This is the permanent magnet. This is the north pole
एंड दिस इज द साउथ पोल। तो आप जानते हो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और साउथ पोल में इंड होता है, लाइक दिस। ओके, सो इनसाइड this magnetic field a coil A B C D is placed. These two coil, end of this two coil is connected with P and Q हाफ रिंग। ये P रिंग है और ये Q रिंग है। इस दोनों रिंग को कहते हैं स्प्लिट रिंग। ये आधे आधा रिंग है, टूटा हुआ रिंग है। ओके, एंड दीज रिंग्स आर कनेक्टेड विथ X, ब्रश X एंड ब्रश Y। P connected with brush X and Q half ring is connected with brush Y. This brush Y is made up of either carbon या metals. ये this is the conductive in nature. Current passes through these brushes. Okay, and these half rings are attached with a axle. axle के चारों तरफ ये रोटेट करता है। अब देखिए इसमें होगा क्या, when current pass through this coil थ्रू अ बैटरी से करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हैंड ए बी विच इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स। ये ए बी एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और हैंड सी डी आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो ये फोर्स के कारण ये हाफ रोटेशन करेगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। लेकिन बी सी एंड ए डी हैंड पर कोई फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज दे आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो आफ्टर हाफ रोटेशन या दिस कॉइल ए बी सी डी रोटेट इन डायरेक्शन ए anti-clockwise direction. After half rotation this CD hand reaches to the AB and AB hand reaches to the CD, and P brush या half ring P is reaches to the Q and Q attached to the X। तो ये P जो है Y से ब्रश से अटैच हो जाएगा और Q X से। तो इसमें क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद इस हैंड में, हैंड CD में करंट डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगा और AB में भी करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने वाला कौन है, कम्यूटेटर है। इस कम्यूटेटर का काम कौन कर रहा है, स्प्लिट रिंग act as a commutator because after half rotation it changes the direction of current. Okay, so now due to the change of the direction of current after half rotation, this coil move in anti-clockwise direction continuously. Okay, so this is the working principle of motor, electric motor. Okay, now अब देख लीजिए वही जो हम बताए थे, therefore the coil continue to rotate एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टू इन्हेंस द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक मोटर का पावर इन्हेंस करने के लिए, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करना है परमानेंट के बजाय। द लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ कंडक्टिंग वायर या कॉयल विल बी नीडेड। एक ABCD नहीं चाहिए केवल कॉयल का, उसमें कई सारे टर्न्स होने चाहिए कॉपर वायर के। अ सॉफ्ट आयरन ऑन विच the coil is wound, okay, and this soft iron core on which coil is wound is known as armature। एक coil पर, एक आयरन कोर पर कॉयल बनाते हैं जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। तो ये ज़रूरी है, ये सारे अगर हम वो कर दें, बाउंड कर दें, तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर का पावर है वो इन्हांस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या EMI इसको भी शॉर्ट में लिखा जाता है, EMI। ओके, EMI। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नो फ्रॉम
Oersted experienced that a current in a conductor produces magnetic field. हमने ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि व्हेन वी पास द करंट थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट. So reverse to this, the Michael Faraday discovered that a moving magnet is used to produce current in a conductor. तो क्या हम मैग्नेट को मूव करा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट प्रोड्यूस हो सकता है, तो क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है? यस, इट इज़ पॉसिबल, एंड दिस इज डन बाय द माइकल फैराडे. ओके, तो यहाँ देखिए, अ फिनोमेना इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन अ क्लोज सर्किट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड is called electromagnetic induction. Okay, a way to induce magnetic fields. There are several ways to induce magnetic fields. बहुत सारे वे हैं जिससे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हम इंड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब देखिए इसमें कितने हैं. फर्स्ट, वी कैन इंड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी by these two way. First, by relative motion between coil and the magnet. मैग्नेट और कॉयल के बीच में रिलेटिव मोशन करें हम. by changing the magnetic field around a nearby coil. मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके भी हम कॉयल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल एंड द मैग्नेट. दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय फैराडे. ओके, 17 अक्टूबर 1831 में ये फैराडे ने किया था. देखिए, फैराडे यूज अ कॉयल ऑफ रॉड ऑफ वायर ए बी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न, अ बार मैग्नेट एंड अ सोलो एंड सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर इज यूज टू रिकॉर्ड द momentary flow of current as well as its direction. So galvanometer show the current and it also show the direction of current. Okay, it can detect. फर्स्ट में देखिए, अब देखिए यहाँ पर केस फर्स्ट, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द बिग ऑफ कॉयल. ये कॉयल की तरफ नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉयल की तरफ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. ओके, तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी कीप द कॉयल ए बी स्टेशनरी. मान लीजिए इसको हम घुमा नहीं रहे हैं, ये v इक्वल टू 0, बट इसका मैग्नेट का v इक्वल टू नॉट 0, ये 0 नहीं है, ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स बी ऑफ द कॉयल, बी साइड में. तो क्या होगा, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन हैज बीन सीन इन द गैल्वेनोमीटर. जैसे ही इसको नज़दीक ले आएंगे तो गैल्वेनोमीटर जंप्स इन राइट डायरेक्शन, ये राइट डायरेक्शन में चला जाएगा. और जैसे ही ये रुक जाएगा, मैग्नेट को हम रोक देते हैं, वैसे ही मोमेंट्री करंट 0 हो जाएगा, या ये आप नीडल जो गैल्वेनोमीटर का है वो 0 दिखाएगा. ठीक है, गैल्वेनोमीटर का नीडल 0 दिखाएगा. अब देखिए नेक्स्ट केस 2, इफ बार मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉयल. अगर हम बार मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं कॉयल से, तो क्या होगा, मोमेंट्री करंट विल आल्सो इंड्यूस इन अपोजिट डायरेक्शन. अब करंट जो है लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. गैल्वेनोमीटर में दिखा रहा है करंट तो प्रोड्यूस होगा बट इन रिवर्स डायरेक्शन. सो एग्जैक्टली द सिमिलर ऑब्जर्वेशन आर आल्सो मेड if magnet is being stationary and coil move. अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, मैग्नेट को 0 रखें और कॉयल को मूव कराएं, कॉयल को दूर ले जाएं, मैग्नेट को वहीं रहने दें, तो भी इसी तरह का होगा. कॉयल को जैसे नज़दीक लाएंगे तो राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर दिखाएगा पॉइंटर, और जैसे ही कॉयल को दूर ले जाएंगे वैसे ही ये लेफ्ट साइड में दिखाएगा. तो हम कॉयल को आगे पीछे कर करके करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कॉयल को जैसे रोक देंगे देयर विल बी नो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर या कॉयल. ओके, नेक्स्ट देखिए, केस थर्ड, व्हेन कॉयल
AB एंड मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी, अगर कॉयल और मैग्नेट दोनों को हम रोक दें, न मूव कराएं, सो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो कोई गैल्वेनोमीटर नहीं होगा। ओके, सो दैट इज नो इंड्यूस करंट इन कॉयल AB, हैंस डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर ड्रॉप टू जीरो। अगर रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए दोनों के बीच में तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सेकेंड, ये देखिए केस फोर्थ, इफ साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट मूव टूवर्ड्स द बी ऑफ कॉयल, मान लीजिए साउथ नॉर्थ पोल अब तक मूव कर रहा था, अब साउथ पोल को हम कर दें तो अब ये क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल मूव टूवर्ड्स या जंप टूवर्ड्स लेफ्ट। अब अगर इसको दूर ले जाएं तो ये जंप टूवर्ड्स राइट हो जाएगा, लेकिन अगर हम रोक दें दोनों को तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल, ओके, या इन द गैल्वेनोमीटर नीडल, सो नो करंट विल बी प्रोड्यूस। सो इफ साउथ पोल मूव अवे, ये मूव अवे होगा तो ये राइट साइड में जंप कर जाएगा। ओके, इफ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉयल देन करंट विल आल्सो बी इंड्यूस्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर या इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज इफ द मैग्नेट एंड कॉयल आर रैपिडली मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर हम तेज़ी से गैल्वेनोमीटर तेज़ी से कॉयल और मैग्नेट को मूव कराने लगें और जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही करंट और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली, सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट एंड दिस इज द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल। ओके, ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलते हैं। सपोज करिए ये कॉयल है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड एट द पोल्स, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्राउडेड होते हैं और जैसे पोल से दूर जाते हैं ये क्राउडेड कम होते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी मोर एट द पोल एंड लेसर एट द अवे फ्रॉम द पोल्स। तो अगर मान लीजिए ये कॉयल यहाँ पर है और हम मैग्नेट को दूर रखे हुए हैं या कॉयल को यहीं रख करके देखें तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम है इसमें, लेकिन जैसे ही इस कॉयल को नज़दीक लाते हैं और पोल के पास तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस कॉयल विल बी इंक्रीज। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस कॉयल इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब नज़दीक लाते हैं तो कॉयल को मैग्नेटिक पोल के नज़दीक लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा और जब दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। तो बाई चेंजिंग दिस मैग्नेटिक फ्लक्स करंट विल बी इंड्यूस। Okay, this is the main point, main reason. So here the less magnetic field line, yeah, less magnetic flux, more magnetic field lines, more magnetic flux. So it is the change in magnetic flux, okay, in the coil induced current. Change in magnetic flux is responsible for induction of current in a coil. Okay, this is the main things. Now सेकेंड वे में देखते हैं, बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉयल अराउंड द नियर बाई सेकेंडरी कॉयल। सेकेंडरी कॉयल में देखिए, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए दिस इज द प्राइमरी कॉयल। प्राइमरी कॉयल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, एंड दिस इज द सेकेंडरी कॉयल। दिस सेकेंडरी कॉयल इज अटैच्ड विद गैल्वेनोमीटर G, ओके, इन विच करंट विल बी प्रोड्यूस, इसमें करंट प्रोड्यूस कराना है I। और यहाँ पर देखिए दिस इज द बैटरी, प्राइमरी कॉयल अटैच विथ अ बैटरी, दिस कॉयल इज नोन एज, या दिस कॉयल एक्ट एज अ सोलोनाइड, ये सोलोनाइड का काम कर रहा है। व्हेन वी स्विच ऑन, जैसे की को ऑन करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे तो क्या होगा, करंट एक ही बार में जंप करेगा और बढ़ जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस टू द सेकेंडरी कॉयल। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब क्रॉस करने लगेगा तो मोमेंटरी करंट फ्लो होगा और राइट साइड में जंप करेगा। जैसे ही की को ऑफ कर दें या की को प्लग आउट कर दें, की को बाहर निकाल देंगे या स्विच ऑफ कर दें तो वैसे ही करंट कम होगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कम होने लगेगा। तो कम होने होगा तो भी ये जो
गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड में दिखाएगा। सो इसका मतलब है कि जैसे करंट इन क्वाइल इज रीचेज आइदर स्टीडी, या जैसे करंट स्टीडी हो जा रहा है, बराबर जा रहा है 5 न्यूटन का, तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर नीडल, ओके। या अगर करंट नहीं है तो भी नहीं दिखाई देगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस हैंस इंड्यूस करंट इज इंड्यूस इन द क्वाइल 1 ओनली whenever the electric current flow through the coil 1 is all changing, या स्टॉप करें या स्टार्ट करें, जब हम कॉइल 1 में करंट को स्टॉप करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है कॉइल बी में या सेकंड कॉइल में, और जब स्टॉप करेंगे तब होगा। स्टार्ट और स्टॉप करने में ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, किसमें, कॉइल 2 में। अन्यथा अगर स्टीडी करंट कॉइल 1 में हो रहा है 5 न्यूटन का जा रहा है तो भी नहीं होगा, या बंद हो गया तो भी नहीं होगा, ओके। एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड टू इट आल्सो चेंज, thus magnetic field line around the secondary coil also change, so current will produce. Hence the change in magnetic field line associated with the secondary coil is the cause of induced current into it, okay। जैसे ही देखिए यहाँ पर आप ध्यान से, जैसे ही करंट इसमें चेंज होता है, जैसे ही करंट इसमें पैदा होता है, तो दिस सोलोनाइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करते हैं तो इसमें करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जैसे ही स्टॉप होता है तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होने लगते हैं तो भी चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज वाई induced current will also be produced but opposite direction. So this is all about this lesson. Thank you.